Gloire à toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ये दिव्य जीवन ग्रंथ अध्ययन वर्गर समस्त भाई भणी समस्त माँ कृपा भिक्षा करुछि। आमे ये दिव्य जीवन ग्रंथर द्वादश अध्याय 12 चैप्टर द लाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन अध्ययन करुछंती। से आमे जहाँ जहाँ ए पर्यंत पढ़ी तार एक प्रारूप रखा पर आज अध्ययन आरंभ करवा। आमे जानू जे विश्वर मर्मरे एकांत अविच्छेद्य भाव इनएलिएनेबल आनंदर एक महासमुद्र परिव्याप्त हो रही अंडरलाइन डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस एवं आनंदर से महासमुद्र को परिकल्पना करिबा आम शरीर मन प्राण रो जो सामर्थ्य रही से ताको पूरा अनुभव करि पारु नहीं। आमे केवल उद्वेलित हो उठुथिबा विश्वर उपरि भागर चेतना स्पंदन गुड़ी को देखुछु। ता मध्यरु जो गुड़िक आम प्राण और मनर अनुकूल आमे ताको भावात्मक पॉजिटिव और जो गुड़िक प्रतिकूल आमे ताको नेगेटिव एवं जो गुड़िक आम उपरे सुख और दुखर किछि प्रभाव आणु नहीं आमे ताको न्यूट्रल प्ले ये भली भाविचु। एवं एक कथा मध्य आमे जानू जे एक अनंत और अविभाज्य सतवस्तु इंडिविजुअल जो कॉन्शसनेस सेटा ही विश्वमय सकल वस्तुर आत्मस्वरूप एवं से आत्म सचेतन सत्तार एक अनंत अविनश्वर शक्ति मध्य यह अरूपरु रूप को यात्रा करे असीमरु ससीम को यात्रा करे एवं शाश्वत चेतना भितरु विभाज्य चेतना भितर को गति करे एवं यह अनंत अचल परिवर्तन रहित जतेबेले यही ब्रह्म को आमे आविष्कार करिया को सफल हो सेतेबेले आमे देखू जे स्वरूपानंद आम आधार मध्यरे विद्यमान रहिचंती एवं से स्वरूपानंद को अनुभव करिया पई आमे कौन करू ना जेतेबेले चेष्टा करू सेतेबेले उपरी भागरे जोड़िक आमे वस्तु मानकू बा जगतटा को गोटे ऊपर ठाउरिया मन नहीं कि गोटे जाक सुपरफिशियल कह जाई परिबो से भली गोटे अनुभूति भितर आमे ताको देखू। तेणु से परमानंदंकर बा स्वरूपानंदंकर
ବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଭାବଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁପ୍ତ, ଅବୋଧ୍ୟ ଆଉ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଏଇଟା କେବଳ ହିଡ଼େନ୍ ହୁଏ, ଅନ୍ନଏବଲ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ସବକନସିୟସନେସ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଚେତନାରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ମନୋତ୍ତର ଏକ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆନନ୍ଦରୁ ହିଁ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ବଞ୍ଚି ରହୁଛି ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ delight is existence, delight is the secret of creation, delight is the root of worth, delight is the cause of remaining in existence, delight is the end of birth and that into which creation ceases. From Ananda, says the Upanishad, all existences are born. By Ananda they remain in being and increase. Parivrutti labha karanti. To Ananda they depart. Sabu Ananda madhyako madhya prasthana karanti. ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏଇ ମୂଳ ସତ୍ତାର, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମମୟ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ବିଙ୍ଗ ଅଛି, ତାର ତିନୋଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଟ୍ରିବୁନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁଖ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଏକ ମିଶ୍ର ଭାବ ବା ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଖ ବି ନଥାଏ ଦୁଃଖ ବି ନଥାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଯଦି ମାୟାବାଦ, ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଏବଂ ପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିହିଲିଜମ୍, ଏ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଜଗତକୁ ବହୁ ବାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବି ବହୁ ବାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ, ଇଏ ସଂସାର ଅଳିକ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାୟା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା, ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅସାର। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାୟାବାଦ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ମାୟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଛୁ, ବା ପ୍ରକୃତରେ ମାୟାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ମାୟାର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଛି, ମାୟା କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଳିକତା, ମାୟା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୃଥାପଣ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଯାହା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ସେଇଟା ବୁଝିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାର ଶବ୍ଦଟିର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଯାହା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେ ଏଇ ଜଗତଟି ଯଦି ସତ୍ ନୁହେଁ, ଯଦି ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣିକ, ମାୟା, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ଭିତରକୁ ଆସିଛି କାହିଁକି? ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି କି? ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହା। ଏ କଥାଟିକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ କହୁଥିଲେ ଖପରା। ଯଦି ସେମିତି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଭାବିପାରିବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ
ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବା ଗୋଟେ ଅବିଭାଜ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି ବୁଝିବା, ଏଇ ଖପରା ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ପାର୍ଟ ତା'ର। ତ ଏଇ ଖପରାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ କିଛି ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା କି? ତ ତେଣୁ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଷିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣ ହାଣ୍ଡି ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ, ହାଣ୍ଡିରୁ କେମିତି ଖପରା ତିଆରି ହେଉଛି ବୁଝିଥିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଷିକ ସ୍ତରରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ କିଛି ଧାରଣା ତିଆରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖପରା ଦେଖିକିରି ହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିବାଟା ବହୁତ ସମୟରେ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆଜି ବାସ୍ତବିକ ସେୟା ହେଇଛି। ଏଇ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦେଖିକି, ପୃଥିବୀଟା ହେଲା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅବିଭାଜ୍ୟ ସଦବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସିଏ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝିଯିବାଟା, ଜାଣିଯିବାଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଟା ଆସେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ନିତାନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ କଥାଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଗୀତ କିଏ ଗାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦିଓ ସେ ଗୀତର ଧୁନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ତାର ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଗୀତଟିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତାର ଭାବଟିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯାଇ ବୁଝିଲେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଆମ ଶରୀର କିପରି କ୍ରିୟା କରେ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ଆମ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନଟି ଅଧିକ ମହତ୍ ହେବ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆମେ ଆମ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା, ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା, ଅଧିକ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଅଧିକ ତାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି କୌଣସି କଥା ବି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଜାଣିଥାଉ ସେ କଥାଟି ଗୋଟେ ଉଦାସୀନତା ଭିତରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ଉଦାସୀନତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲି ଯେ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆଦୌ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେରିକା କେଉଁଠି, ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେଉଁଠି। ଯଦି ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତା ଘରକୁ ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି। ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତା ଘରକୁ କେହି ଜଣେ କୋଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଫେରେଇ ଦେବ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାରଟି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଘରକୁ ସେ ଆସିବେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଲୋକଟି ଟିକେ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ, ଆମେରିକାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ବି ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ମଣିଷଟି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜାଣିବାଟା ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା, ଆଉ ଜାଣିବାଟା ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ବା ସତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେବି। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ନହେଲେ ତ ମନ୍ଥରା ଭଳି ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରୁ। ଯଦି ସେ ମନ୍ଥରା ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଆଖିରୁ ଅନ୍ତର କରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣି ନପାରୁ ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ନିଜର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯେ ସେଇ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ ସଦବସ୍ତୁର
गोटे छोट खंड जहाँ संपूर्णतः आनंदमय सत्ता मध्य आसी से कथाटी बुझीबारे आमर विफलता रही। आमे जेतेबेले यही प्रबंध पाठ करुछु सेतेबेले सेही भली गोटे अपेक्षा आउ सेही भली एक आस्पृहा सेही भली एक आकांक्षा नौछु आम भितरे जे आमे निजको आम निज चारिकड़र सत्ता मानू सकल सृष्टि को भगवान लीला को बुझीबारे आमको माँ गोटे दिव्य चक्षु प्रदान करंतु जहाँफल आमे मध्य से आनंद को संदर्शन करिपरिबा। तेते पर्यंत आमे से आनंद को देखि पारुना से आनंदमय सत्ता को सबू वस्तु भितर अनुभव करि पारना ताले सेते पर्यंत आमर ये अज्ञानता और आमर ये जो जहाँ को कहते ऑडासिटी स्पर्धा और मिछ अहंकार ये सब कथा गुड़िक आम चेतन को आवरी बसथिबो एवं आमे विखंडित सत्ता भाव जो जहाँ सब भोग करने कथा ता भोग करुवा। तेणु विगत आमर यही द्वादश परिच्छेद उपरे एपर्यंत 3टी क्लास होइछि। से प्रथमे आमे फास्ट पाराग्राफ अल्प किछि पढ़िथिले तापरे द्वितीय तृतीय चतुर्थ एमती पढ़िबार चेष्टा करथिले किंतु गत क्लास रे किछि टेक्निकल रीजन रु आमे गोटे पाराग्राफ रो किछि अंश को पूरा आलोचना करि पारि नथिले जा फल किछि वरिष्ठ साधक साधिका जो माने ई अध्ययन वर्ग रे पढ़ापढ़ी करुछन से माने मते टेलीफोन जोगे जणै थिले। तेणु आमे आज पुणी थे पाराग्राफ 3 रु पढ़ा कारण सेटा पूरा पढ़ा जाई पारि नाही किछि असुविधा हला। तेणु मो से भाई भौणी माननकु मोर कृतज्ञता जणाउछि कारण से माने मांकर आलोकरे आलोकित एवं से माने समस्ते सीरियसली पढ़ापढ़ी करुछन्ति ता नहले शब्द को नहीं जहाँ जहाँ संकट होची बा धाड़ी ओड़ी को नहीं जो संकट हो ताको लक्ष्य कर पारछन्ति बहुत चमत्कार। तेणु आज आम तृतीय पाराग्राफ पढ़ा। तो तृतीय पाराग्राफ टेक्स्ट ये अच्छी जे वर्ल्ड इज माया। आमे माया शब्दटी सहित बहुत परिचित। ये जगत को माया कहिबारे बहुत समय आमे छोट बेलू ये कथा सब शुणी। मु भावुची भारत वर्ष रे जन्मग्रहण करता गोटे छोट छुआ भी जाने माया कौन ताक गोटे नेगेटिवली से बुझी जाए जगत गोटे माया। माया कहले प्रहेलिका गोटे जमी आपण गोटे मंच उपर गोटे माया तैयारी करे मंच माया जो मनीषटा ठीक कथा बुझीपर जहाँ रियल से आग को आसीपर ना ताको आम माया कहवा। से आमे कौन कहू द वर्ल्ड इज अनरियल जगतर अवास्तव मायावाद ताही कहूँ किंतु श्रीबिंदु कहते वर्ल्ड इज नॉट अनरियल जगत हलिक नुहे कहीं नुहे इन द सेंस दैट इट इज नो सॉर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस जे जगतर सत्ता बोली किसी नहीं एमती किसी कथा अच्छे कि जगतर सत्ता जो माने कही ताही बोली से माने जीवार बहु दिन पर्यंत जगतर सत्ता विद्यमान रही। अर्थात आमे जो माने जगत को गोटे भ्रांति बा जगत गोटे अलिक कल्पना सामयिक भाव में एटा तिष्ठि रहे यह अवास्तव कहते से यही कथाटी बड़ चमकप्रद जे यार अस्तित्व अभाव कारण बा तार सत्तार अभाव कारण ताको आमे अलिक बोली कहूनु से सत्ता विद्यमान रहिबो। हाँ हो पारे सत्ता मानकर रूपांतर हम हे तो ए रूप ना से रूप ये जगत रे गोटे गछ थिला से गछटी कौन है कत दिन मरीगला मरीगला तार कौन रूपटा लोप होगा
ସେଇ ଗଛ ଜାଗାରେ ଯାହା ଥିଲା ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଆସିଯିବ ସେ ଜାଗାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛର ଦେହଟା କ'ଣ ହେବ, ତା ପଟା ହେଇଯିବ। ପଟା ହେଲା ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଖଟ ହେଇଯାଇପାରେ, କବାଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଝରକା ହେଇଯାଇପାରେ। ସେ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ କି ରହିବନି? ରହିବ। ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଛଟି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ରୂପ ହରେଇ ଦେଇଛି, ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅନରିଅଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇ ବସିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଦାକାଳ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅବାସ୍ତବ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ବା ମାୟା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଫର୍ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ। ଯେ ଜଗତ ଗୋଟେ ମାୟା ରୂପ, ଏଇ ମାୟାଟିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପେଜୋରେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କନିଂ, ଫ୍ରଡ୍, ଇଲ୍ୟୁଜନ୍, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ, ଅପମାନବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଥିଲେ ମାୟାକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଛଳନା, ବଞ୍ଚନା, ବିଭ୍ରମ ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାୟାର ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିଭାଷା ଏଇଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଏଇ ପୃଥିବୀଟାରେ ଆମେ ତାକୁ ମାୟା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନରିଅଲ୍ ନୁହେଁ, ଅବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ୟାର ଏଟର୍ନାଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଚିରକାଳ ରହିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ୟା ପାଖରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଥିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବା ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର। ଯଦି ତା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଳିକ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାୟୀ, ଚିରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଚିରନ୍ତନ। ତାପରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନର୍ ought we to say that world is unreal in the sense that it has no kind of eternal existence। ଆମେ ତାର ଶାଶ୍ୱତ ବା ଚିରନ୍ତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଅବାସ୍ତବ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। For although particular worlds and particular forms may or do dissolve physically and return mentally from the consciousness। ଯଦିଓ ଏଇ ଜଗତରେ କିଛି ରୂପ ବା କିଛି ଜଗତ ହୁଏତ ବିଲୁପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ନୂତନ ରୂପରେ ଫେରି ଆସୁଛି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖଣିରେ କିଛି ପଥର ଅଛି, ସେ ସୁନା ପଥର, ସେ ସୁନା ପଥରଟି ଆସିକରି ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ସେଇ ସୁନାଟି ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ହୁଏତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ମାଟି ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟା ଦିନେ ଇଟା ହେଇଯିବ, ଇଟାଟା ଦିନେ କାନ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବଦଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ବିଲୁପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତା ଫେରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠିକି ଫେରି ଆସୁଛି ନା କନସିୟସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ନନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ତାହେଲେ ସିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ପ୍ରକାଶରୁ ଅପ୍ରକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ନେବା। ଧରନ୍ତୁ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା, 4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଗଛରେ ଦେଖୁଛୁ ଫୁଲଟି ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେଇଟା ଶୁଖିଯାଇଛି, ମଉଳି ଯାଇଛି, ଝଡ଼ି ଯାଇଛି, ହୁଏତ ଫଳରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା କିଛି ବାଟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଏମିତି କହିବା ଯେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶରୁ ଅପ୍ରକାଶ ଆଡ଼କୁ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଡ଼କୁ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନରୁ ନନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ମରିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ସିଏ ପ୍ରକାଶରୁ ଅପ୍ରକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନରୁ ନନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ପୁଣି ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ଯାତ୍ରା ବି ରହିଛି, ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ ନନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। କାରଣ ଏଇ ସମଗ୍ର
अस्तित्वटा को जो देखिए ये दिने अरूप होइकिथिला पुणी रूप परिग्रहण करथिला एक कथाटी हम जानिछु। तेणु अरूपरू रूपकू रूपरू अरूपकू व्यक्तरू अव्यक्तकू अव्यक्तरू व्यक्त मध्यकू ये जो यात्राटी एटा होची प्रकृति लीला एटा होची माया कारण ये से स्थायी रूप से ସେଇଟା ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଜୋରେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ନେବାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଭାବରେ ଫନି ଲୀଳା ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏଟ୍ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ତାହେଲେ ରୂପରୁ ରୂପକୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ପୁଣି वर्ल्ड इन इटसेल्फ आर एटर्नाल तेणु गोटे जगत आउ गोटे जगत को यात्रा करता तेणु रूपरू रूप मध्य को यात्रा पुणी जगतरू जगत मध्य को यात्रा यहीटा है गोटे मध्य लीला जमीक रूपरू रूप को यात्रा माने कौन कहवा ताको भल भाव बुझा चेष्टा करते आमे आज जो बयस जो रूप आपण आपण पिला काल फोटो देखले चिन्ह पारे ताले पिला काले आपण गोटे अलग रूप थिले से रूपरू पुणी आउ गोटे रूप को आपणकर यात्रा है। आज जो गोटे माठियाटे अच्छी कि गोटे पात्र अच्छी माटीर पात्र सेटा दिने माटी थिला तो से माटीटा वर्तमान माटी पात्र को रूपांतरित हो जाइछि। से भली गोटे छोट गछ थिला तार मात्र 2-4टी पत्र थिले किंतु 10 वर्ष पर आप देखुं से गोटे विशाल वृक्ष परिणत हो अर्थात ये रूपरू रूप को यात्रा तो से भली यहीटा हूँ गोटे चिरंतन प्रक्रिया आम सब अपोजिट यात्रा होनी रूपरू अरूप को जो भली यात्रा होची एटा अपोजिट किंतु रूपरू रूप को भी यात्रा हो जड़े लोक आज बुढ़ा हो जाए बयस सी दिने आपड़ देखिए मुझे दिन फोटो देखुली दिलीप कुमार आम सुपरस्टार कहते सी युवक अवस्था केमी देखा केमी देखा यहाँ रूपरू रूप को यात्रा हो फ्रॉम दी नॉन मैनिफेस्टेशन दे रिटर्न इनएविटेबली इनटू मैनिफेस्टेशन ताले अव्यक्तरू पुणी व्यक्त आड़क निश्चित भावरे बा अपरिहार्य भावरे से माने यात्रा करती दे हैव एन इटर्नल रेकरेन्स से पाखरे गोटे शाश्वत जो निरंतरता बा निरंतर पुनरावृत्ति होची से कथार ये जो यात्राटी होची कोटी जे गोटे व्यक्तरू व्यक्त हवाकू कारण आपण जड़ जगतर सृष्टि पूर्व कौन थी जड़ जगतर सृष्टि पूर्व अव्यक्त ही थिला अव्यक्तरू गोटे व्यक्त आसिला रूप सृष्टि है तो यही जो फ्रॉम द नॉन मैनिफेस्टेशन दे रिटर्न इनएविटेबली इनटू मैनिफेस्टेशन दे हैव एन एटर्नल रेकरेन्स यही जो जीवा आसपाटी रूपरू अरूपकू अरूपरू रूपकू रूपरू रूपकू यही यात्रा गुड़िक गोटे एटर्नल रेकरेन्स अर्थात एटा गोटे निरंतर पुनरावृत्ति इफ नॉट एन एटर्नल परसिस्टेंस एन एटर्नल इम्यूटेबिलिटी इन सम एंड फाउंडेशन जदि आमे समष्टि और भित्तिर क्षेत्र में देखिबा ताले एटा गोटे एटर्नल इम्यूटेबिलिटी अर्थात शाश्वत भावरे अपरिवर्तनीय यही यात्राटा को यही परिवर्तनटी को आपण रोकी पारे आम गोटे इंग्राजीटा केमी कहूना रेगुलारली रेगुलार तो यहाँ से भाई इंग्राजी माने आम कहवा जे ये परिवर्तनशील किंतु इट इज एटर्नल इम्यूटेबिलिटी यही जो परिवर्तनटा को आम अपरिवर्तनीय यही परिवर्तन अपरिवर्तनीय रूपरू रूप को जो यात्रा होची रूपरू अरूप को जो यात्रा होची अरूपरू रूप को जो यात्रा होची तो ସେଇଠି यह अपरिवर्तनीय दिस इज एटर्नल इम्यूटेबिलिटी कौथिरे ना इन सम एंड फाउंडेशन तार समष्टि रे आउ तार भित्ति रे मध्य आमे जेहेतु जदियो बारंबार आपण को कहि दिया जाउछि साधारण जीवन आउ आध्यात्मिक जीवन भितर यही होची मूल पार्थक्य जे साधारण जीवन
सत्ता गुड़िक डिविजिबल मन करते, विभाज्य मन करते, किंतु जो माने आध्यात्मिक से माने बुझंती जे से जो सदवस्तु से परम ब्रह्म से समस्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ विद्यमान थिबा कारणरू जदियो एहा गोटे अंश भाई दिशुची, गोटे भाग भाग होकर दिशुची, डिविजिबल दिशुची, किंतु प्रकारांतरे यहाँ हूँ इंडिविजुअल ए गोटे सदवस्तु। अर्थात मोर कहवा कथा ये सम एंड फाउंडेशन मीन हूँ सीटा जे समष्टि आउ तार भित्ति एलॉन्ग विथ एन एटर्नल म्यूटेबिलिटी इन एस्पेक्ट एंड एपारिशन। अर्थात एस्पेक्ट कहले स्वरूप बा विभाव, एपारिशन कहले आविर्भाव, आउ ताको आभास अर्थ भी नहीं पारिबा। तेणु आमे देखुचु गोटे एटर्नाल इम्यूटेबिलिटी जेभली भाव में रही सेमिति एटर्नाल म्यूटेबिलिटी मध्य रही। एक कथा टिके केते चमत्कार भाव लिखा जाइछि, आपण अपरिवर्तनीय भाव में परिवर्तनशील, एटर्नाली इम्यूटेबल फॉर व्हाट ना एटर्नाली इम्यूटेबल फॉर एटर्नाल म्यूटेबिलिटी, परिवर्तन पाई। अर्थात आमे आज गोटे कला बाछुरी देखी किसी दिन पर देखा से बढ़ी बड़ बाछुरीटे है। आपण जहाँ को गछ देख माटी देखी थे से देखिए से गछ उठी से गोटे माने गोटे कपार गछ होती, किछि दिन पर ता देहरे गोटे तुला फली, सी तुलाटा किछि दिन पर सूता होगला, सूता किछि दिन पर लुगा होगला, लुगा किछि दिन पर चिरिकी पुणी माटी होगला। ये जो परिवर्तन इम्यूटेबिलिटी एटा एटर्नाल इम्यूटेबल, ये सदा परिवर्तन चलुछि। नॉर हैव वी एनी श्योरिटी that there ever was or ever will be a period in time when no form of universe, no play of being is represented to itself in the eternal conscious being। ताले समयर खंडरे कालर खंडरे एपरी गोटे समय आसीब नाही जेतेबेले आमे निश्चित हो पारिबा जे ई जगतरे बा विश्वरे गोटे भी रूप नथिबो, एमिति समस्या एबे केबे नथिला। यही वक्तव्यटी जे आमर ऋषि मानक द्वारा प्रदत्त होइतिला। वेदांतर यही चरम सत्य को विवेकानंद तांकर जो लेक्चर्स चिकागो सहर रे जो वक्तव्य देथिले सेथिरे एक कथाटी कहिथिले जे सृष्टि और स्रष्टा तांकर बयस सबुबेले समान, सृष्टि दिनरु स्रष्टा रहिचंती, स्रष्टा दिनरु सृष्टि रहिचंती। अर्थात भगवान आगे आसिले तापरे से सृष्टि को रचना कले, भगवान एकुटिया थिले तापरे तांको सृष्टि आसिला, एपरि नुहे। अर्थात एठी सेई कथाटी को श्री अरविंद आहुरी अलगा सुंदर शब्द रे कहले जे एपरि गोटे कालखंड आसीब नाही when no form of the universe, no play of being is represented to itself in the eternal conscious being। यही शाश्वत चित शक्ति बा चित सत्तांकर पाखरे एपरी गोटे समय आसीब नाही जोठी जगतरे रूप गुड़िक रहिबे नाही बा विश्वरे रूप गुड़िक रहिबे नाही। अर्थात रूपहीन जगत नथिला। तेणु आमे एठी गोटे आपण कॉन्ट्राडिक्शन भली लागि पारे जे आमे कहूँ अरूपर रूप को यात्रा है, किंतु जोटा अरूप होती टिके आगु आपण को कही दिगला नॉन मैनिफेस्टेशन, सेटा अव्यक्त होकि किसी समय पाई रही पारे। यहीटा देखंतु आपणकर गोटे जगार सबु गछ मरीगला, सबु घास गछ मरीगला, केवल माटीटी अच्छी। वर्तमान आपण केवल माटी भिन्न अन्य कौन रूप को देखी पारना। किछि दिन पर आपण देखिए से घास गछ उठी जाइए, अन्यान्य गछ मैंने उठी से गचरे गोटे फूल होइछि, पुणी किछि दिन पर से गोटे फल फली। अर्थात यही जेतेबेले ता व्यक्त ही नथिला सेटा अरूपरे थिला, जेतेबेले व्यक्त हला सेतेबेले से रूप को फेरी आसिला। अर्थात यही जो म्यूटेबिलिटी, यही परिवर्तनशीलता अपरिवर्तनीय भाव में यही जगतरे चिरंतन भाव में रही। तेणु यात्राटी सबुबेले अरूपरू रूप को नुहे, बहुत समय यात्राटी मध्य रूपरू रूप को होछि।
आम समस्तंकर रूप अनेक समय बदलुची गोटे निआटे जितेबाला जले से जो आकार रे थाए सेटा कौन शेष पर्यंत सामान हुए अलग अलग हुए गोटे पानी जितेबाला प्रवाहमान हुए गोटे से जो वाटर प्रवाह होता है ସେଇଟା କ'ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ରହେ ସେଇଟା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତରେ ସବୁ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ନୋ କ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଜ୍ ଆପିୟର ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ଇନ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ପରପିଚୁଆଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଜଗତରେ ଆମେ ରହିବା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ୍ ପରସେପ୍ସନ୍। आमर ये जो परिचित जगत परिज्ञात जगत जो जगत विषय आम जानू तार जे सी गोटे ता सही स्वरूप आसिक तत्स्वरूप आसिक पुणी थे से स्वरूप मध्य विलीन हो जाऊँगी यही कथाटी जानापी आम पाखे गोटे इंट्यूटिव परसेप्शन दरकार प्रज्ञागत अनुभूति बा प्रज्ञागत पर्यवेक्षण। जदि आमे आपण बहुत समय प्रश्न पचारे आम यहाँ कहीं पढ़ुचु आपन को उत्तर या ही हम जे आम ये जानूँ आम पाखे गोटे इंट्यूटिव परसेप्शन तैयारी हो जो इंट्यूटिव परसेप्शन बल आम यही परिचित जगतर निरंतर घटुवा घटना गुड़िक आम जापर निरंतर कौन घटना घटुची ना यह चिरंतन भाव परिवर्तन होछि एवं यही परिवर्तन हवाटा मध्य एक चिरंतन प्रक्रिया। तो आम यही कथारू जानिले जे यह मध्य ईश्वरंकर माया ईश्वरंकर लीला ये कथा प्रकटित होछि। एटा होछि आनंदमय। आपन को जतले आनंदमय कथा कहगला सेतेबेले ये कथाटी एस्टाब्लिश करा जाउछि। ये जगतर स्वरूप होछि आनंदमय। ये कथाटी एस्टाब्लिश करा जाउछि। काहे कि आनंदमय ना एटी भेराइटीज अछि। आपण आनंद क्या कहती गोटे जदि आपण गोटे पहाड़ ईश्वर सृष्टि करते गोटे समुद्र सृष्टि करते ताहले गोटे आकाश भी अच्छी किंतु आकाशर रंग बदलुच आकाश रे मेघ मैंने आकाश रे तारा मैंने आकाश केवे अंधार हो जाउछि केवे आलोकित होउछि अर्थात से रूपरू रूप मध्य केते परिवर्तन होउछि। यही जो परिवर्तनटा सेटा होछि आनंद जदि आमे गोटे प्रज्ञामय दृष्टि रे ये कथाटी देखू जे केड़े सुंदर भाव सब कथा बदली जाउछि। शरत कालर सकाळटीए बसंत कालर संध्या ठारू अलग आपण ये माटी रे देखिए केते परिवर्तन बसंत ऋतु जो पनीपरिया सब हुए शीत ऋतु तार हुए तो अलग हो शीत ऋतु जो सब फूल फुटे वर्षा दिन में से फूल सब फुटे ना अलग हो जाए अर्थात यही जो रूपांतर सब घटी दृश्यांतर सब घटी यही हूँ गोटे आनंदर विषय बहुत कौतूहल विषय किंतु से भली गोटे कौतूहल प्रति साधारण मनीष जी तार साधारण चेतना रही है सी ताको देखिपारे ना से श्री अरविंद गोटे इंट्यूटिव परसेप्शन कथा कहले ये गोटे प्रज्ञामय दृष्टि हेले ही आम यही परिज्ञात जगतटी को जापर केते चमत्कार भाव में ये कथाटी आपन को ज्ञापित करागला आउ यही जगत रे केते केते दृश्य रही से आकाश रे तारा फुटी उठंतु कि गछरे फूल फुटू कि चढ़ई माने गीत गातु कि झरणार गीत शुभु कि वर्षार गीत शुभु कि गोटे सकाळर केड़े सुंदर चढ़ई मानकर काकली शुभु जहाँ भी घटू ता प्रति गोटे बा यही परिज्ञात जगतर सबू घटना प्रति सबू संदर्भ प्रति से श्रीअरविंद दुईटा शब्द व्यवहार करते एस्पेक्ट एंड एपारिशन जो भाव आविर्भाव होची दृश्यावली रूपावली एवं जो बाटरे जो विभाव नहीं से आसूची से आस्पेक्ट को से विभाव को आउ से आभास को ग्रहण करने आम पाखे मध्य गोटे गोटे प्रज्ञामय दृष्टि थिबा दरकार। यही प्रज्ञामय दृष्टि केवल जड़े आध्यात्मिक व्यक्ति जार चेतना समुन्नत जार चेतना बहुत अग्रगति करुछि बा चेतनार तार विस्तृति होछि चेतना तांकर गभीर को जाउछि तो से ही व्यक्ति यही सृष्टि प्रकरणटी को बुझिबार चेष्टा करिवे स्रष्टांकर लीलाटी को बुझीपारे
एवं स्रष्टांगर लीलाटी बुझिया फल पाखरे केवल आनंद ही आनंद कारण ना से गोटे फिक्सीटी आड़ को जीवेनि गोटे रिजिडिटी आड़ को जीवेनि कारण से जानती सबू कथा परिवर्तनशील एवं से परिवर्तन सब आसूची आम चारिकड़े थिबा परिस्थिति आम चारिकड़े थिबा अनुभव आम चारिकड़े थिबा दृश्यावली आम चारिकड़े थिबा घटना प्रतिघटना ये सबू बदली जीवो यहाँ ही चिरंतन सत्य अपरिवर्तनीय भाव में यह सत्य ये परिवर्तनटी ये कथाटी आम ये पाराग्राफ रे पढ़िले पुणी कहुच्छी स्टिल वर्ल्ड इज माया बिकॉज इट इज नॉट द एसेंशियल ट्रूथ ऑफ इन्फिनिट एक्जिस्टेंस बट ओनली ए क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस बीइंग not a creation in the void, not a creation in nothing and out of nothing, but in the eternal truth, and out of the eternal truth of that self being, its continent, origin and substance are the essential real existence. Its forms are mutable formations of that to its own conscious perception, determined by its own creative conscious force. एक दीर्घ ताड़ी आम धीरे धीरे पढ़ा जे ये जगत तथापि आमको माया भली लगुच तार कारण होछि जे यार जो एसेंशियल ट्रुथ यार जो अनंत सत्य रही एसेंशियल कहले यथार्थ सत्य ऑफ इनफिनिट एक्जिस्टेंस से यथार्थ सत्यटी कहाँकर से होछि से अनंत अस्तित्वकर इनफिनिट एक्जिस्टेंस तेणु इनफिनिट एक्जिस्टेंस जो यथार्थ सत्य एसेंशियल ट्रूथ रही बट ओनली ए क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस बीइंग यह चिदात्म सत्तांकर एक सृष्टि गोटे कॉन्शियस बीइंग कॉन्शियस कहले चित आउ बीइंग कहले सत्ता तेणु चिदाचित सत्तार यह हूँ गोटे सृष्टि पुणी आम कहे बट ओनली ए क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस बीइंग नॉट ए क्रिएशन इन द भॉइड यह शून्य तैयारी है नहीं शून्यवादी माने जो माने शून्य मध्य निराकार कहते शून्य मध्य ज्योति रही शून्य मध्य सबकि तिष्टि रही तेणु से गोटे ग्रेट नट्र कथा कहते NOUGHT से भली गोटे भॉइड भितर गोटे नथिंगनेस भितर किसी कथा आसी ना नॉट ए क्रिएशन इन द भॉइड नॉट ए क्रिएशन इन नथिंग आउट ऑफ नथिंग कारण देखंतु विज्ञान एपर्यंत स्थिर अच्छी गोटे कथारे सत्य जे समथिंग कैनॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम नथिंग किछि जदि नाही ताले सेठू गोटे किछि जिनिसर उद्भव केमिति हो विकास केमिति हो हबनी तेणु आमे जो माने शून्यवादी कहले से सब प्री बुद्धिस्ट एवं बुद्धिस्ट पीरियड रे जो फिलोसोफर माने आसीथिले से मानकू आमे शून्यवादी कहते आउ से शून्यवादी माने गोटे प्रकार शून्यता भितर सब किछिर सृष्टि हेछि बोली परिकल्पना करुथिले कारण सृष्टि तत्व तो केवल गोटे ही कि नहीं मायावादी माने सृष्टि तत्व अलग कहते बुद्धिस्ट माने जो आम शून्यवादी मान कथा कहलु से माने तत्वटा को अलग प्रकार कहते एवं अलग बाटर जदि बुझा आपणकर वेदांतिस्ट माने मध्य सृष्टि प्रक्रिया को अलग बाटर कहते ताले आम या बुझुचु but in the eternal truth and out of eternal truth of the self being आमे एठी देखुचु गोटे तार कंटिनेंट ओरिजिन आउ सब्सटेंस याको आमे जदि ओडिया रे कहबा कंटिनेंट कहले आमे बुझू गोटे महादेश बा गोटे क्षेत्र बा गोटे अंचल गोटे क्षेत्र एठी कहबा आउ तार उत्स ओरिजिन आउ सब्सटेंस तार उपादान एई शाश्वत जगतर ताले कोन नथिंगनेस तार उपादान नुहे एवं भॉइड तार उपादान नुहे ताले कोटा तार उपादान ना तार उपादान आउ तार उत्स आउ तार जो कंटिनेंट से सबू हूँ सदब्रह्म
से सबकिछि होउचंती सद्गुरु। पुणी तांकर जो निजस्व ଆଉ ଗୋଟେ क्रिएटिव the creation of the self conscious being, not a creation in the void, not a creation in nothing, and out of nothing, but in the eternal truth and out of the eternal truth of that self being। ताले सेही जो eternal truth जो शाश्वत सत्य सेही होउछंती यार कौन ना तांकर भित्ति, से होउछंती तांकर उत्स, से होउछंती तांकर उपादान एवं इट्स फॉर्म्स आर म्यूटेबल फॉर्मेशंस। तेणु तार जो जेते रूप अच्छी से रूप गुड़िक स्वाभाविक भाव में परिवर्तनशील एंड रियल एक्जिस्टेंस इट्स फॉर्म्स आर म्यूटेबल फॉर्मेशंस ऑफ दैट से तत्तर सत्तर परम ब्रह्मकर टू इट्स ओन कॉन्शियस परसेप्शन। तांकरी चेतनागत अनुभूति भितरे तांकर चेतनागत अनुभव भितरे सेटा डिटरमिन्ड बाय इट्स ओन क्रिएटिव कॉन्शियस फोर्स। तांकर सृजनशील चित शक्ति यही सब कथा को निर्माण करिछि। ताले जो माने यहाँ को भ्रम बोली कहते गोटे इल्यूजन बोली कहते से यार प्रत्युत्तर दि जाउछि जे यह भ्रम नुहे, एटा भूल रे तैयारी हेनी बा ये गोटे भ्रांति आड़ को जाऊनी, ये गोटे नथिंगनेस आड़ को जाऊनी। ये तार गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य तो निश्चय रही कहीं रही ना तार जो कंटिनेंट तार ओरिजिन आउ तार सब्सटेंस होचंती क्रिएटिव सेल्फ बीइंग माने सेही ब्रह्मसत्ता होचंती तार क्रिएटिव फोर्स अर्थात तार जो सृजनशील शक्ति। तेणु आमे आज एतिकी पढ़िथिबा जहाँ पढ़िले माया संपर्क रे मायाटा को बुझीवाटा जरूरी। मायाटा को बुझिले ही आमे याको पॉजिटिव सेंस रे नबा, प्रिजरेटिव नबा नहीं नेले निराशा। देखो मायावादरा कौन करथिला गोटे प्रकार निराशा तैयारी करथिला, गोटे अलिकता रही ये जगत किसी तार किसी अर्थ नहीं या ये जीवन किसी मूल्य भी नहीं कारण यहाँ गोटे अलिक जीवन अस्थायी जीवन इरा सरीज आउ ब्रह्म केवल सत्य आमे समस्ते ब्रह्म का फेरी जा। आज भी अनेक लोक भगवान पाक फेरी जाओ चाहती मुझे बुझीपारनी जे भगवान पाक जब फेरी जावाई आम लक्ष्य स्थिर करिया तो भगवान आमको कहीं एठिक आनी सी कहीं आम पठे जाओ से जगत रे लीला खेला कर आनंद आमे आनंद रही पारना आमर अज्ञानता आम अहंकार आम माड़पिट होचे यार जो जीवन जो अंतर्निहित आनंद रही सृष्टि लीला रे जो आनंद रही समग्र सृष्टि आनंद मध्य तिष्ठि रही आनंद मध्य वृद्धि प्राप्त होची आनंद मध्य सबकिछिर लीला खेला चली से कथा बुझी पारनु ता अर्थ नुहे जे जमती आम मायावादी मानक या कह चाहे बा शून्यवादी मानक या कह चाहे जे आम छोट बेले जो पढ़ी ना जो अंगूरटा जड़े खाई पारे से अंगूरटा खट्टा लगे अंगूर कोली मिठा खट्टा से गोटे श्रृगाल अंगूर लता को बहुत डेईला खायापी किंतु डेई न पारला तार कहला ये कोलीर कौन मूल्य अच्छे एटा खट्टा कोली गुड़ा पड़ेगा। तो से आमको बुझा पड़ो जे किभली भाव में यही सृष्टि मूल यही सृष्टिर जो क्रिएटिव फोर्स जी अच्छा जी प्रकृति आदिसत्ता जी या सृष्टि करिसेंती जी तार उत्स से किभली या आनंद रु प्रतिभात करिसेंती। पवन रे भी आनंद अच्छी जल रे भी आनंद अच्छी सबु रस रे आनंद अच्छी माटी रे आनंद अच्छी जीवन रे आनंद अच्छी वस्तु रे आनंद अच्छी यही आनंदटा को खोजियापाई हेले आमे ए विश्वटा को बुझिया को चेष्टा करछे। जेतेबेले यही अध्यायर समाप्ति आड़ को आम धीरे धीरे अग्रसर करथवा सेतेबेले आम जीवन संपर्क रे सृष्टि संपर्क रे आम धारणाटी धीरे धीरे स्पष्ट हो जाउथबा एवं आनंदर अभिव्यक्ति किभली आम चारिकड़े घटुची आम जीवन भितर घटुची एक कथाटी मध्य आम चारिकड़े स्पष्ट होथबो। आनंद आमको दि जाइए किंतु आनंदटा को आम से चाबीटा को आप पाखे नथिबार आम चाबीटा खोलिकी से आनंदटा को पाई पारुनु। तेणु से चाबी जो हजिची से आम अहमिकार
से चाबिटी जो हजेचु आम आम अज्ञानतार तेणु जितेबाला आम अज्ञानता से अहमिकार प्राचीरटी भांगीज आनंदर आलोक आम भर को प्रवेश हम तेणु एभली एक अमरत्व को मुझे पुणी थे आपण मानक स्वागत करुँची माँ असीम करुणा आम ये अध्ययन वर्ग में निजक सामिल कर माँ पाखे कृतज्ञता सहित आज वक्तव्य को ये रखुच्छी। वंदे मातरम। ॐ शङ्खचक्रधरं देवं द्विभुजां पीतवाससम् ॐ आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मां च बृहस्पतिम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। ॐ मध्ये सुधावधिमणिमण्डपरत्नवेदे सिंहासनो परिगतां परिपीतवदनां पीताम्बरां कनकमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम् ॐ ह्रीं चण्डिके देवी ॐ ह्रीं चण्डिके देवी या गच्छ यतिष्ठ सन्निधे सन्निरुध्यस्व सन्निता भव अत्राधिष्ठानम्